of the atomic. Okay, first I have introduced you the concept of Planck's model, then Bohr's model. Okay, then I explain you that how we can move the electron from the lower orbit to higher orbit. So when the any colder gas will absorb the energy in terms of radiation, so their electrons will move from the lower orbit to the higher orbit. But the electron cannot stay in the excited state, so the electron will jump back to its lower state and it will emit the radiation which it has absorbed. So these emitted radiation will emit the photon. Basically, the radiation has been emitted in terms of photon. So when we will analyze the spectrum of that photon, so we will get the discrete spectrum. Okay. So basically, I told you in the yesterday class that there are two types of spectrum. Number one is called continuous spectrum, which we observe in our daily life in terms of rainbow, in terms of thin film, soap bubble. We can observe the continuous spectrum. And the second one is the line spectrum. Line spectrum is only formed by the gases. All right. Line spectrum is also called discrete spectrum, which is further divided into the two categories: this absorption spectrum or emission spectrum. All right. Assalamu alaikum, Aisha. Aisha, you didn't take class yesterday, but I have uploaded the recording. Did you go through it? Walaikum assalam. No, miss, I'll go through after the class. Better you have to go through it because yesterday we discussed very important concept of atomic spectra. Okay. All Okay, right. miss. Now, students, all right. So now I have explained you that how the continuous, basically this line spectrum is also of two type, as I told you: emission spectrum and absorption spectrum. This one is absorption and this one is emission. If I will combine both of them, so I will again get the continuous spectrum. All right. So now you can see when the white light is passed through any absorbing medium like cool gas, so it means that the gas atom will absorb the energy in terms of radiation, so their electrons in the atom will absorb the photon and they will move at the higher state, excited state. But so it means the spectrum which we will analyze here after absorbing material, so we will get this type of spectrum that is called absorption spectrum. So why these lines are missing, beta? These lines of certain wavelength are missing because these photons has been absorbed by this absorbing medium. All right, so it means that atom in this absorbing medium, this is a nucleus, this is a single atom I'm talking about. So electron will not stay in, electron will move from lower state to the higher state after absorbing the energy. And this state is called excited state. So electron cannot stay in the excited state. It will again jump back to its initial level, ground level, and it will emit a photon which it absorbs. All right. This photon will release the spectrum. We can analyze the spectrum of this emitted photon, and that spectrum is called emission spectrum. So you can see we will exactly get those lines which we were missing in the absorption spectrum. Is it clear to you, students? Yes. Okay, so yesterday I gave you this concept that how we, acha, if there will be a greater transition from higher orbit to the lower orbit, so it means that the emitted photon will have greater energy and it will have greater frequency and smaller wavelength. All right, but if the transition is at lower level, so it means that the emitted photon has less energy and greater wavelength. Then I discussed the formula with you that we can use this formula to find the emitted photon wavelength, or we can find, if we know the wavelength, so we can, like for example, if I'm telling you that the material is absorbing the red light or material is emitting the red light, so we can find the energy gap as well, that what is the energy gap between the two levels. Okay. So, and I discussed this diagram with you that you can see if the electron band gap or energy gap is greater between the two excited ground state or the excited state, so it means that the emitted photon light will be also greater. Okay, emitted photon energy will be greater. Now, students, look at the question number 3. This question has a weightage of 3 marks, so we will solve this question today. In this question, they are saying the diagram shows sum of the energy level for an atom of hydrogen.
अब देखिए जवेरिया, ये वही वाली बात आ गई कि हाइड्रोजन का तो एक ही ऑर्बिट होता है, एक ही शेल होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इतने सारे एनर्जी लेवल कैसे आ गए इलेक्ट्रॉन के पास, एटम के पास? हाइड्रोजन का तो एक ही शेल होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट देयर आर 3 डिफरेंट स्टेट इन ईच ऑर्बिट: ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, आयनाइजेशन स्टेट। ग्राउंड स्टेट एक ही होती है जिसपे इलेक्ट्रॉन जो है वो रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। एक्साइटेड स्टेट वो स्टेट है, दे आर मल्टीपल एक्साइटेड स्टेट, मल्टीपल एक्साइटेड स्टेट, जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप बैक कर सकता है आफ्टर एब्जॉर्बिंग द फोटोन, ठीक है। और द फाइनल स्टेज इज द आयनाइजेशन स्टेट। आयनाइजेशन स्टेट वो होगी जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से कंप्लीटली रिमूव हो जाए या कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए। ऑलराइट, जी मिस, ओके। ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, 0 वोल्ट, -5, माइनस माइनस माइनस, ईच एनर्जी लेवल इज मेंशन हियर। Determine the transition between the energy levels that would result in the release of a photon with a frequency of 7.48 into 10 raised to power 13 hertz। अच्छा बिलाल, मिस, मुझे ये कैसे हो रहा है? एनर्जी माइनस में कैसे आ सकती है? माइनस में आती है एनर्जी, ठीक है, इसलिए हम E1 में से E2 को अब इसके लिए हमें पूरी बहुत एटॉमिक मॉडल की डेरिवेशन भी करवानी पड़ेगी आप लोगों को। वैसे तो एनर्जी यहाँ पे हम नेगेटिव में ही लेते हैं, पॉजिटिव नहीं होती एनर्जी, ठीक है। वैसे भी एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, माइनस में हो पॉजिटिव में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम माइनस से ही इंडिकेट करते हैं इसको, ठीक है। ओके मिस। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल्स टू एच एफ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे दी हुई है 7.48 इंटू 10 टू पावर 13। ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? आयशा, आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी बेटा ये टॉपिक समझने में, क्योंकि कल मैं ये पूरा टॉपिक कल मैंने 1 घंटे की क्लास में एक्सप्लेन किया है। आप रिकॉर्डिंग मैं देखिए आयशा, तो आपको समझ में आएगा। जी बेटा। वेव्स वाले चैप्टर के या ये वाले टॉपिक की? वेस्ट का ये ये, भी तो शुरू करनी थी ना? हाँ लेकिन बेटा ये टॉपिक रह गया था, तो इन यस्टरडे क्लास आई डिस्कस दिस टॉपिक। फिर इसके फौरन बाद हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। बस अब उसके बाद ओके। मुझे फौरन इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करवानी है, वी डोंट हैव मच टाइम। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी दी हुई है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है रिलीज फोटोन की 7.84 इंटू 10 टू पावर 13, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी से क्या हम एनर्जी निकाल सकते हैं कि एनर्जी कितनी आ रही है बाय यूजिंग द फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच एफ? हाँ जी बिलाल। मिस। अच्छा, तो एनर्जी किसके बराबर आएगी? एच की वैल्यू क्या होती है? 6.63 इंटू 10 टू पावर -34, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 7.48 इंटू 10 टू पावर 13। इसको मल्टीप्लाई करके बताएं एनर्जी कितनी आ रही है। इसका आंसर आ रहा है 4.95 इंटू 10⁻20। अच्छा, दोबारा रिपीट करेंगे बेटा? 4.95 इंटू 10⁻20। -20 जूल में आ रहा है। अब द प्रॉब्लम इज दैट ऑल द एनर्जी लेवल्स आर गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so now we will convert the joule into electron volt. Do you remember I have told you how can we convert the joule into electron volt? तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से। तो डिवाइड करके बताएं कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रही है। मिस, ये 1.6 की क्या चीज़ है ये? ये चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ओके। है। 0.31। 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट विच वी यूज फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम यूज करते हैं। अच्छा, अब हमें क्या फाइंड करना है कि इलेक्ट्रॉन किस स्टेट से किस स्टेट पे जंप करेगा। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन 0 से 0.54 पे जंप कर रहा है तो एनर्जी गैप तो सिर्फ 0.54 ही आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एनर्जी गैप 0.54 से भी कम आ रहा है, 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 0 से 0.54 पे तो नहीं आएगा, ठीक है। अब या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है। तो देखिए, आई टोल्ड यू द फॉर्मूला यस्टरडे, डेल्टा E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। डू यू रिमेम्बर बेटा दिस फॉर्मूला? जी। ठीक है, तो डेल्टा E वी आर गेटिंग हियर 0.31। अगर मैं E1 इसको कंसिडर कर लूँ तो E1 इज -0.54 माइनस E2। तो हम E2 फाइंड कर सकते हैं कि E2 किस लेवल की ट्रांजिशन होगी, किस लेवल पे जंप करेगा, यहाँ जंप करेगा, यहाँ जंप करेगा, यहाँ जंप करेगा, कहाँ से कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो से मिस, यहाँ आएगा। जी आपने बोलो। 0.5 को भी कंसिडर किया, आपने 0.85 क्यों नहीं किया? 0.85 इसलिए नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है ना, फोटोन रिलीज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करेगा।
तो किस हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे ही जंप करेगा ना इलेक्ट्रॉन, अपनी वापस अपनी स्टेट पे आ रहा है, अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम ग्राउंड स्टेट कंसिडर कर रहे हैं 0.54, ठीक है। जीरो भी दे सकते हैं, लेकिन जीरो अगर मैं यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन ले रही हूँ तो मिनिमम हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो 0.54 होगी, जो कि हमारी तो बहुत कम आ रही है एनर्जी। इसका मतलब ये कि ये जीरो पे नहीं जंप करेगा, 0.54 पे जंप करेगा। अब जरा मुझे E2 की वैल्यू निकाल के बताएं क्या आ रही है। मुझे समझ नहीं आया हमने क्यों 0.54 लिया है। अच्छा देखें जवेरिया, यहाँ देखें, मुझे बताया हमारे पास दो एनर्जी लेवल का गैप कितना आ रहा है, 0.31 आ रहा है ना। जी। अच्छा, मिनिमम एनर्जी गैप कितना हो सकता है, यही हो सकता है मिनिमम एनर्जी गैप, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो वो फोटोन रिलीज करेगा, राइट। जी। अच्छा, मिनिमम एनर्जी गैप अगर मैं निकालूं तो मैं जीरो में से 0.54 को माइनस करूंगी तो चेंज इन एनर्जी कितनी आनी चाहिए। 0.54। तो हमारा तो उससे भी कम आ रहा है, एम आई राइट। जी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यूं जंप नहीं करेगा। फिर या तो इलेक्ट्रॉन जो आएगा जंप करेगा वो डायरेक्ट यहाँ किसी हायर स्टेट से इस 0.54 पे जंप करेगा, बना रही हूँ, तभी आपके पास एनर्जी लेवल कम आएगा। अच्छा एक काम करें ना, 0.85 में से 0.54 को माइनस करके बताएं, आर वी गेटिंग 0.31 हियर। जीरो डेल्टा, पॉइंट थ्री वन हाँ तो बस देखिए, जीरो डेल्टा इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। वी नीड 0.31 हियर, तो E1 हम इसको कंसिडर करेंगे, E2 हम इसको कंसिडर करेंगे। E1 इज माइनस 0.54 एंड E2 इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बेसिकली मैं शो कर देती हूँ, तो माइनस माइनस 0.85, ठीक है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो इट मीन्स माइनस 0.54 प्लस 0.85। इसको सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। अब आप खुद बताएं जवेरी, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जीरो पे जंप करेगा तो 0.85 में से 0.0 निकालेंगे तो 0.85 कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जीरो पे जंप नहीं कर सकता, लाजमी किसी लोअर ऑर्बिट पे ही करेगा, तो हमने रेफरेंस लोअर ऑर्बिट 0.54 कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन होगी वो -0.85 से होगी -0.54 पे, हायर टू लोअर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट फोटोन रिलीज हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। एब्जॉर्ब होगा तो लोअर टू हायर जाएगा। अब समझ में आया ये ओके। क्वेश्चन। जी। महानूर, नबीला, बिलाल, आयशा, थोड़ा सा बेटा आपको मुश्किल होगी। आप आज कल वाला लेक्चर पहले देखिएगा, फिर आज वाला लेक्चर भी देखिएगा, तो आपको ये बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके मिस, ओके। कैलकुलेशन समझ में आई, डिड यू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन। यस, वो समझ आ गया। ओके, ऑल राइट। नाउ आई थिंक वी शुड सॉल्व वन मोर क्वेश्चन जो कैलकुलेशन से रिलेटेड है। यहाँ देखिए नील्स बॉहर, तो देखिए कल मैंने आप लोगों को बॉहर एटॉमिक मॉडल भी शो किया था। बॉहर एटॉमिक मॉडल क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड ड्यूरिंग ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिलीजिंग एनी टाइप ऑफ एनर्जी। प्लैंक्स ने ये बात कही थी, नहीं रदरफोर्ड ने ये बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के इर्द रोटेट कर रहा है तो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, और लूज करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में आके ही गिर जाएगा और एटम का तो वजूद ही नहीं रहेगा। बट रदरफोर्ड ने इस थ्योरी को डिनाई किया। रदरफोर्ड ने ये बात कही थी कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट इट इज नॉट लूजिंग द एनर्जी, ठीक है। और उसने तीन पॉस्टुलेट दिए थे। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर द थ्री पॉस्टुलेट्स, व्हाट आर द थ्री फर्स्ट, postulates of Bohr atomic model? that it has an orbit like a fixed energy level. Well done. The electron orbits around the nucleus have fixed energy. Orbits around the nucleus have fixed जी। energy. Their energy is quantized. ठीक है। Second postulate क्या था? Electrons themselves have a fixed energy level that they can exist on. ठीक है, हाँ ये तो बिल्कुल वही उसी को रिलेट कर रहा है, फर्स्ट और पॉस्टुलेट को ही रिलेट कर रहा है। थर्ड पॉस्टुलेट क्या था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जैकेट Oh पहनो। हाँ, कि electrons can move from one energy level to other energy level. बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट आफ्टर एब्जॉर्बिंग द लाइट एनर्जी, बट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टे एट दैट लेवल, सो इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन विल कम बैक एंड इट विल रिलीज अ फोटोन, ठीक है। तो ये हमारा था नील बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्हेन एन एटम इज आयनाइज एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इट्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस टू बी फ्री फ्रॉम द एटम, ठीक है। जब एटम आयनाइज होगा तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है,
and बहुत derived an expression for an ionization energy in joules for a hydrogen atom. अच्छा, यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, ई क्या है यहाँ पे, चार्ज, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय के एच, के इज द कांस्टेंट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड जी इज 8 इज द कांस्टेंट. नाउ दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट द एनर्जी इन ऑफ एन एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये तो बहुत ही आसान है, सारी देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट इज वेरी इजी. जो हमें वैल्यू थी सारी दी हुई है, ये इसमें पुट करेंगे तो एनर्जी आएगी जूल्स में. जूल्स को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल गेट द आंसर. ठीक है. तो नाउ स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज गिवन इन जूल्स एज दे हैव मेंशन. तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ई स्क्वायर. अच्छा, ये फॉर्मूला आपके डेरिवेशन में पेपर सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए मैंने ये आपको ड्राइव नहीं करवाया. दे हैव गिवन अस बाय देम सेल्फ इन द एग्जाम. ठीक है. तो चार्ज जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय के की वैल्यू हमें दी हुई है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34. ठीक है. अच्छा, मल्टीप्लाई बाय एम अपॉन 8. अब एम लिखने की मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ. एम की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 1/1860. नहीं, ये होता है जो मैं लिख रही हूँ, ये वैसे आपके एग्जाम में वैल्यूज दी हुई होंगी, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 डिवाइडेड बाय 8. इसको सॉल्व करके मुझे एनर्जी बताएं कितनी आ रही है. देन इन द लास्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Okay. अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक होमवर्क सेंड किया था ग्रुप के ऊपर, सिर्फ मुझे महानू ने वो होमवर्क सॉल्व करके भेजा है और किसी ने भी सेंड नहीं किया वो होमवर्क. क्यों? हम्म. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक क्वेश्चन था, सिर्फ मुझे महानू ने करके भेजा है. अगर आप लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे बेटा तो हाउ यू विल प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एग्जाम? ओ, ओके नबीला, ऑल राइट. आयशा, जवेरिया, बिलाल, यू हैव टू सेंड मी दैट होमवर्क बाय टुडे. ठीक है, आज भी मैं आप लोगों को एक होमवर्क दूंगी. ओके, ऑल राइट नबीला. ओके बेटा. अच्छा, ये आंसर किसने लिखा है, 2.2 इंटू 10⁻⁻18. सही आ रहा है ये बिल्कुल. हु रॉट दिस आंसर? Yes, मैंने लिखा है. ओके, गुड. तो ये जो आंसर आ रहा है जूल में आ रहा है, एज दे हैव ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन. तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें कन्वर्ट करना है, तो इट्स वेरी इजी. सिंपली वी विल डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19. आयशा, इसको डिवाइड करके बताए बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कितनी आ रही है? 13.75. 13.75. गुड. तो मेरी आंसर, भी आ रही है। ओके गुड बिलाल. 13.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम ऑर्बिट. ये ऑर्बिट की एनर्जी है. वैसे एनर्जी का जनरल फॉर्मूला जो हमने जब पढ़ा था तो वो ये पढ़ा था 13.7 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर. जितना ऊपर जाएंगे एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी कम होती जाएगी. ठीक है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है नहीं तो आई डिडंट डिस्कस इट विद यू. यहाँ तक मिस कोई? ये हमारे हम्म. मिस हमारे में सारे ये होंगे ना, लाइक एच की वैल्यू और एफ ये की सब दिया वैल्यू. हुआ होता है, सब दिया हुआ होता है, आपको याद कुछ भी नहीं रखना है इसको. ठीक है. चलें, एक क्वेश्चन और कर लें. मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी उस क्वेश्चन को. ये वाला क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, और ये वाला क्वेश्चन हमने कल किया था जवेरिया. नहीं मिस. नहीं किया? अच्छा. चलें, ये हम कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. द डायग्राम शो सम ऑफ द एनर्जी लेवल्स ऑफ अ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल दिए हुए हैं और फर्स्ट ऑर्बिट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एक्साइटेड स्टेट है. ग्राउंड स्टेट जो होती है वो 0 वोल्ट पे होती है. एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इन द लेवल -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ड्रॉप टू लेवल -13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है. तो मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट, कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है? रिलीज. रिलीज कर रहा है, रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ एटलीस्ट 1 फोटोन. ठीक है. तो 0.54 से इट इज मूविंग 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पहले तो ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, फिर ये यहाँ पहुंचेगा, फिर इस स्टेट पे ये ज्यादा देर नहीं रह सकता. इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट बाय रिलीजिंग द फोटोन. ठीक है.
अब क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोन एनर्जी वैल्यू कुड नॉट बी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। कौन सी वैल्यू प्रोड्यूस नहीं हो सकती, कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, ट्रांजिशन चेक करने के लिए वी हैव टू यूज द फॉर्मूला डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। ठीक है। आपने कहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। नहीं बेटा, देखिए ये जो है इस वक्त ये लो एक्साइटेड स्टेट में है, बिल्कुल है, ठीक है। अगर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो फोटोन को रिलीज करेगा, ठीक है। जी। Excited electron in the level minus 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट drops to the level minus 13.0। हाँ सही है, जब आपकी बात सही है, ऊपर से नीचे ही ड्रॉप होगा, ठीक है। इट मीन्स दैट इट विल रिलीज द फोटोन, यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये फोटोन को रिलीज कर रहा है, ये लोअर ऑर्बिट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कौन सी एनर्जी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू विच इज नॉट पॉसिबल। कौन सी, डेल्टा ई, यानी कि दो एनर्जी लेवल का गैप पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे कि भाई कौन सी एनर्जी लेवल पॉसिबल नहीं है, क्या सबको बैठ के कॉम्बिनेशन बना के माइनस करते रहेंगे? हम्म। जी स्टूडेंट्स, विच वन इज द राइट आंसर? इसका आंसर डी तो नहीं सोचेंगे कि डी की वैल्यू आ रही है, इफ यू माइनस दिस बाय दिस तो उसका आंसर 13.06 आ रहा है। 13.06 आ रहा है, अच्छा। तो नहीं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है? 13.06। लेकिन ये कह रहे हैं कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कुड नॉट बी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस जी। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, तो ये तो पॉसिबल है ना, माइनस करने पे आंसर आ हाँ, तो तो जाए। आंसर नहीं हो सकता, मैं आंसर नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि पॉसिबल है ये वाली। They are asking which energy value could not be produced from this electron transition. Could not be produced कह रहे जावेगा। जी स्टूडेंट्स। जी बिलाल, क्या आंसर हो सकता है? नबीला। हम्म। Um, अच्छा मुझे ये बताएं, ये आंसर हो सकता है 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? मुझे तो नहीं, क्यों नहीं हो सकता ये आंसर? देखिए क्योंकि जीरो जीरो। पॉइंट फाइव फोर जी जी सॉरी बेटा, बोलिए। नहीं नहीं, मुझसे बोले। देखिए 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये है कि 0.54 हमारे पास जब आएगा जब हम E1 लेवल माइनस 0.54 को ले, ठीक है। और ई टू लेवल यानी नहीं, बल्कि E1 हम जो लेंगे वो जीरो लेंगे, ठीक है। और E2 जो है वो माइनस 0.54 लेंगे, तो फिर हमारे पास ये आंसर पॉसिबल है। लेकिन क्या यहाँ पे इन्होंने कोई भी जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ट्रांजिशन स्टेट दी हुई है? नहीं। स्टेट दी हुई है? जब दी हुई नहीं है तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन हियर। ऑल आर द दीज ट्रांजिशन स्टेट्स। तो इसका मतलब ये है बेटा, बी इज द राइट आंसर, वी विल नॉट गेट 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? अब आप किसी का भी कॉम्बिनेशन बना लें, क्योंकि मैंने सबका कॉम्बिनेशन बना के देखा था, किसी का भी आंसर 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आ रहा। नहीं मीन्स 0.54 देखिए जब भी पॉसिबल है जब जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट माइनस 0.54 में जंप करेगा, और दिस जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। जी जवेरिया। ये गलत आंसर हुआ ना। ओ अच्छा, नॉट पॉसिबल। ओ मैं अच्छा, आपको मैंने बार क्वेश्चन बार नहीं। यही तो कह रही हूँ बेटा कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यही वैल्यू एक पॉसिबल नहीं है, बाकी ये सारे आंसर हम बना सकते हैं, ये सारे आंसर आ सकते हैं, ठीक है। दो एनर्जी लेवल्स का गैस 0.31 भी आ सकता है, 12.09 भी आ सकता है, बट ओनली दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए जीरो से जंप करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, चलिए ये क्वेश्चन भी मुझे एक बहुत अच्छा लगा था, आई थिंक मैंने शायद वो कल सेव नहीं की फाइल, मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड किए थे, बट वो मेरा लैपटॉप बंद हो गया तो वो फाइल ही पूरी करप्ट हो गई। बहरहाल, चलिए, साइरस ए इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई एंड मोस्टली कंपोज ऑफ हाइड्रोजन। When light from Sirius A passes through the hydrogen in the outer layer of the star, देखिए अब साइरस जो लाइट एमिट कर रहा है, इट विल हैव अ हाई टेम्परेचर, हाई एनर्जी, लेकिन जो स्पेस में हाइड्रोजन मौजूद है उसका टेम्परेचर बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि दैट हाइड्रोजन विल एब्जॉर्ब द लाइट
एंड इट विल फॉर्म द एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस गैस में वो एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड का मतलब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएंगे, ग्राउंड स्टेट से हायर ऑर्बिट में जाएंगे, ठीक है। द डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रॉन बीइंग एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा है, ग्राउंड से हायर ऑर्बिट में जा रहा है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन हमें दी हुई है वो -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन -1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिलाल मुझे बताया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा यही रहेगा, एक दफा एक्साइटेड हो गया तो यही रहेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं। फिर ये वापस आएगा, जब वापस आएगा तो ये लाइट को इमिट करेगा, यानी फोटोन को इमिट करेगा, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द डिफरेंट कलर्स ऑफ विजिबल लाइट आर शोन इन द टेबल बिलो। अब क्या कह रहे हैं, अब देखिए हमें डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ दी हुई है। अब हमें ये बताना है कि जो फोटोन इमिट हो रहा है वो किस कलर की रेंज में आएगा। इमिटेड फोटोन की वेवलेंथ निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? E is equal to HF. E इज इक्वल्स टू HF। पहले तो हमें E निकालना पड़ेगा। E हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला E1 माइनस E2। एम आई राइट? जी 1.9 आ रहा है। 1.9 आ रहा है, एनर्जी आ रही है, ठीक है। एनर्जी आ रही है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे या जूल में कन्वर्ट करेंगे? जूल में। जूल में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू HF, ठीक है। तो 1 इस फॉर्मूले के लिए वी हैव टू कन्वर्ट द एनर्जी इनटू जूल। तो इसको क्या करें, एनर्जी को जूल में कैसे कन्वर्ट करें? डिवाइडेड बाय 1.6 10 to the power डिवाइड minus करेंगे, 9. मल्टीप्लाई करेंगे जवेरिया? सॉरी मल्टीप्लाई जी। मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स 1.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10 to the power -19 से। तो जूल में मुझे एनर्जी बताएं आयशा, कितनी आ रही है? 3.04 into 10 to the power -19. 3.04 इंटू 10 to the power -19, ठीक है। तो एनर्जी की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रही हूँ 3.04 इंटू 10 to the power -19। एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 to the power -36। फ्रीक्वेंसी निकाल के बताएं, इमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 2 into 10 to the power minus 54 एक दफा जरा और बोलें जवेरिया। into 10 raised to the power minus 54. माइनस में आ रहा है आंसर? जी गलत। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड होगा ना जवेरिया। तो जब -36 नीचे आएगा तो ऊपर जाके वो प्लस हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। गलत आ रहा है आंसर, प्लस में आएगी फ्रीक्वेंसी। वैसे भी विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी एक्सपोनेंशियल की पावर प्लस होती है, माइनस नहीं होती। बिलाल मुझे आंसर बताएं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ रही है? 4.6 into 10 to the power 16. 14 आ रहा है मेरे पास। 4, अच्छा ये -34 है, सॉरी माई मिस्टेक। अब सही आ रहा है, 4.6 इंटू 10 to the power +14 हर्ट्ज। लाइट की फ्रीक्वेंसी इसी रेंज में होती है, 10 to the power 14। ये तो फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। अब जी 10 to the power 16. आर यू श्योर 10 to the power 16 आ रहा है? नहीं मिस Yes. 14 है। 14. 14 आएगा ना, -34 है आयशा, मैंने गलत लिखा। Okay, okay. ठीक है। अब हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो हम जब बिलाल वेवलेंथ के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? Wavelength is V/F. V/F। तो V इज द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि विजिबल लाइट का कलर निकाल रहे हैं तो इट्स इक्वल्स टू 3 इंटू 10 to the power 8। और फ्रीक्वेंसी आ रही है 4.6 इंटू 10 to the power 14। महानूर मुझे डिवाइड करके बताएं वेवलेंथ क्या आ रही है, देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द कलर, कि किस कलर का फोटोन इमिट होगा। नेगेटिव में आएगी ना मिस। हाँ नेगेटिव आएगी, वेवलेंथ स्मॉल होती है ना विजिबल लाइट की, नेगेटिव में आती है। जी महानूर। वेल डन। 10 to the power 21 नहीं आएगा बेटा, 6.52 तो सही आ रहा है। 8 में से 14 माइनस करेंगे तो 10 की पावर -7 कुछ आएगा। दोबारा चेक करें, Yes. ठीक है। मेरे पास जो वेवलेंथ आएगी वो आ रही है 6.54 इंटू 10 to the power -7। बिलाल मुझे इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन जो हमारे पास दिए हुए हैं वो नैनोमीटर में दिए हुए हैं। तो हाउ कैन आई कन्वर्ट इट इनटू नैनोमीटर? इसको इसको मुझे 10 की पावर -9 बनाना है, तो मैं पॉइंट multiply by
नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पॉइंट को इधर मूव करेंगे तो इट विल बिकम 654 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ 654 नैनोमीटर। एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर विच आई एम गेटिंग। Yes, miss. अच्छा, अब जरा यहाँ देखें, कलर हमें आइडेंटिफाई करना है। 654, 654 कौन सा कलर आएगा? 654 रेड कलर। ठीक है, रेड कलर की वैसे भी वेवलेंथ 700 तक होती है, 620 से 700 नैनोमीटर तक होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फोटोन इमिट होगा वो किस कलर का होगा? रेड कलर का होगा। ठीक है, तो समझ में आया ये क्वेश्चन? जी। इजी है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके पास पेपर्स में। ठीक है, अच्छा चले अब हम इसको स्टॉप करते हैं यहीं पे। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। स्टिल वन क्वेश्चन इज रिमेनिंग ऑफ 6 मार्क्स, बट दिस क्वेश्चन आई विल सेंड यू एज अ होमवर्क एंड यू हैव टू एक्सप्लेन मी दिस क्वेश्चन इन डिटेल एंड यू हैव टू सेंड मी बैक बाय टुडे। ठीक है, 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन है, ये आज मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी होमवर्क पे। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह। सो कैन वी स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी? आज आई वॉज वेरी हैप्पी। आज मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया। मैंने कहा आज तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ानी है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो मेरे फिंगर टिप्स पे है, तो मुझे कोई मसला ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने में। तो आज मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया। ठीक है, तो आर यू रेडी टू सॉल्व दिस, स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट्स? नो। जी मिस। Yes. नो। सही सही, ठीक है, ऑल राइट। इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। मेरे स्टूडेंट कहते हैं, मैं साहब हर टॉपिक पे यही बोलती है कि फेवरेट टॉपिक। अच्छा, याद देखें। ओके, सो नाउ we will start from electric current. Bilal, can you tell me how can we start how can we define electric current? Electric current is the charge, a charge per unit time. Okay, charge per unit time. ठीक है जी जवेरिया, बिल्कुल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो स्पेस फिजिक्स है। ठीक है जी महानूर, मेरे पास 80% जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी सख्त नापसंद है। एवरीवन ओ लेवल्स की फिजिक्स में भी हर कोई मुझसे ये बोला होता है कि टीचर हमें इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आती, इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आती, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है। बट ऑब्वियसली मैंने तो 4 साल ही इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है। मेरा इंटरेस्ट असल में स्पेस फिजिक्स था, but because of the certain restriction I was unable to continue the space physics, so that's why I choose the electricity. मुझे ये वेव्स वगैरह जो है ना, ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अच्छा, हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। ऑल राइट, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू ओके जवेरिया, इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। All right, I is equals to Q upon T. Q is the charges which is flowing through any conductor and in a particular time that is defined as electric current. ठीक है, अच्छा, आजकल के बच्चों को मैं देखती हूँ कि दे हैव लॉट्स ऑफ गैजेट्स, दे हैव टेक्नोलॉजी, दे हैव AI, so they can access. But when if I talk about the my era, so we have certain limitations, certain restrictions. तो आजकल के दौर में मुझे लगता है पढ़ना बहुत आसान है, बट उतना ही स्टूडेंट्स जो है ना, कुछ स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ कि इतना नहीं कोप अप कर पाते। अदरवाइज तो इस वक्त तो पढ़ना बहुत ही ईजियर है एज कम्पेयर टू माई एरा। ठीक है, तो जितना हो सके अच्छा पढ़े। ठीक है, चार्ज इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। आई इज द करंट एंड टी इज द टाइम। करंट की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? Here. एम्पियर। ठीक है, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, yeah, exactly, Nabila. Competition is very tough. Exactly. All right. So current is multiplied by time is equals to charge. Charge की यूनिट क्या होती है जवेरिया? कूलम। कूलम। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, कूलम इज ऑल्सो साइंटिस्ट नेम, एम्पियर इज ऑल्सो साइंटिस्ट नेम। ठीक है, तो एम्पियर किसके बराबर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि एम्पियर को मजीद ब्रेक करें तो एम्पियर किसके बराबर है? एम्पियर यूनिट? मिली एम्पियर। नहीं, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, तो सब एम्पियर के ही बराबर, एम्पियर ही है तो करंट की यूनिट है। टाइम।
कूलम पर सेकेंड, ठीक है। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, करंट की डायरेक्शन वी कैन डिफाइन द टू टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, लाइक द वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन फ्लो विच इज कॉल्ड एक्चुअल करंट एज वेल, एंड द सेकेंड वन इज अ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले था। पहले साइंटिस्ट ये समझते थे कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो होता है, तो दैट्स वाई दे थॉट के करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू नेगेटिव। बट एक्चुअल में आफ्टर जे थॉमसन वी केम टू नो दिस के करंट फ्लो बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो नेगेटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, सो इट मीन्स दैट द एक्चुअल करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट इन ऑल सर्किट वी विल फॉलो द कन्वेंशनल डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, विच इंस्ट्रूमेंट वी विल यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट? Which instrument we will use to measure the electric current? I'm waiting for your answer, students. Ammeter. एमीटर, एग्जैक्टली, एमीटर। और एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे बिलाल, सीरीज में या पैरेलल में? एमीटर को सीरीज में। सीरीज में, वे विल कनेक्ट द एमीटर इन सीरीज, ठीक है, वे विल कनेक्ट द एमीटर इन सीरीज। अच्छा, मुझे हम्म We also use galvanometer for Yeah, very similar exactly. Galvanometer is basically the volt. Ammeter is the extended form of galvanometer, and galvanometer are the most sensitive instrument which can measure the electric current in milliampere or in microampere as well. All right. So we will use the ammeter or galvanometer to measure the electric current, and it is always connected in series. Okay. Acha, how many types of electric current are there? 2, AC or DC? नहीं, हाँ, AC DC. AC and DC. What is Bilal? Can you explain me what is the difference between AC and DC? डीसी के अंदर वो एक ही, क्या कहते हैं, एक ही डायरेक्शन होता है, Hmm. एक डायरेक्शन फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन, और एसी के अंदर लाइक डायरेक्शन चेंज होती रहती है जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होती है। All right. So basically, DC has only one direction. All right. It is frequency is zero. All right. And all the battery cells provide the DC current. It's not a varying current. It's a constant current. Okay. But if I talk about the AC, AC has a varying current. Its direction is continuously changing. All right. It has certain frequency. All right. And the AC generator will provide the AC current. Okay. This is, acha, can anybody tell me how can we get this type of pulses in the electric current? Hmm? Do you have any idea? Diode, right? Exactly. Good, Aisha. Diode. Diode will give us this type of pulses. It is the output of full wave rectifier diode. Inshallah, we will learn this thing as well. Now you can see there is one more formula of electric current which is equals to NAVE. N is the number density. What does it mean by number density? Number density means number of free electrons which are flowing through a particular volume is defined as number density. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द कॉपर, सो कॉपर इज द सुपर कंडक्टर, सो इट्स नंबर डेंसिटी इज ग्रेटर. But if I talk about the other metals like aluminum, like zinc, so they are not superconductors, so number density is less. So it means how many number of electrons are flowing in a particular volume is defined as number density. V is the speed with which the electrons are flowing. So obviously if the drift speed is greater, so the current will be greater. A is the area of